Good afternoon to all of you. Today we are going to start chapter 8. The name of the chapter is Studying the Past. And this chapter is about history. So we will know what is meaning of the word history. Here we have written that history means systematic description of the past events. So history is simply known as the study of the past, and the study of the past is done by the human beings who live in the present time, and they study about the past by collecting some evidences, by collecting some proof about the past events. So history is based on fact and it is not based on imagination. So how many of you have understood about history? Please respond. History very simply means study of the past. Very good. I can see Jikra, Divya, and they all have raised hands. You can unmute and reply also. History means study of the past. And we can also say that history means systematic description of the past events. And history is written by the people who live in the present time. So it is a modern day people who study about the past events, and all the events which we note down about the past, all the things which we describe about the past is written in history. History is very important because it helps us to know, it helps us to learn about the great people and their heroic deeds. Some king, some persons who have contributed for the modernity, contributed for the development of civilization and mankind. We learn about such famous persons. Then we learn about culture. We learn about culture. We learn about art and architecture. कितने लोग को हिस्ट्री बनाना है? तुम ऐसा कुछ काम करोगे जिससे तुम्हारा नाम भी हिस्ट्री में आए? चलो जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करो. क्या तुम ऐसा चाहोगे कि तुम्हारा भी नाम इतिहास में आए, हिस्ट्री में आए? यस सर. थोड़ा अच्छा से रेस्पॉन्ड करो. हाँ, हैंड रेज हुआ है, अनम्यूट करके बोल सकते हो यस और नो में. इफ यू वांट योर नेम टू बी रिमेम्बर्ड बाय द फ्यूचर. और तुमको आज बहुत सारे यस सर. होंगे, तुम्हें अच्छे अच्छे काम करने होंगे तब कोई तुम्हें याद रखेंगे. हाँ, बहुत सारे अभी हमको रेस्पॉन्स मिल गए हैं. So in history we learn about the life of the great personalities. We learn about culture, we learn about art, architecture. अच्छा, कोई बता सकते हो what is architecture? कुछ आइडिया है? कोई बच्चे बता सकते हैं? अनम्यूट करके आंसर दोगे? सर आप क्या क्वेश्चन आंसर फिर से स्कूल में करवाइएगा. कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर? चैप्टर 1. चैप्टर 1 तो कल डिस्कस कर लिए थे. चैप्टर 1 का अभी क्वेश्चन हम लोग जो है केवल चेक करेंगे कॉपी, और जिनका जिनका इनकम्प्लीट रहेगा उनको हेल्प कर देंगे. So the importance of history is that it gives us idea about our art, culture, then architecture.
Apart from that, it also guides us to make our present day world a better place to live in. It motivates us to have the present life of all the people in the world in a better manner. So there were some mistakes we have done in the past. We have fought several wars. We have fought several battles. We have come to know from history that in the past there were several injustices. So it is guiding us not to do the same mistake. Should not repeat the same mistake, and we should lead a life which benefits everyone. How many of you understood the importance of history? You can unmute and respond. हिस्ट्री से पता चलता है हम लोग बहुत सारे किए हैं, पहले लड़ाई लड़ लिए, वार कर लिए, एक दूसरे का खून खराबा किए हैं, बहुत सारे इनजस्टिसेस किए हैं, तो हमें वही सेम गलती ना करना पड़े, इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और हम लोग जो है आगे ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो हम समझदारी से काम लें. A person who studies about history. Archaeologist. 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 और कुछ आंसर? Simple answer. Give me the most simple answer. Person who studies history is called Archaeologist. a person who studies archaeology, a person who studies about past. Okay. और simple वाला होगा, a person who studies or who writes about history is called historian. Historian, sir. ऐसा और परफेक्ट जो लोग काम करते हैं, they are called as archaeologists. Archaeologist is also a person who studies about the past, but they dig the evidence. वो खुदाई करके प्रूफ लेके आते हैं और तब जो है वो तो कोई भी नए जगह होगा, मंदिर होगा, तो वो लोग उसकी खुदाई करके या उसकी बनावट को स्टडी करके जो है डिटेल्स बनाते हैं. ठीक है. और इन सिंपल लैंग्वेज a person who study about past or write about the past is called as historian. ठीक है. Times. Divide history into prehistory and history. Prehistory means when there was no knowledge about the art of writing, when they were the early man, they lead their life but they could not write. Whatever they were doing, they could not write. Okay, so prehistory means when the art of writing was unknown. And history means once we started writing about history, so we have the written record of all the events, and it is more scientific therefore. सर, ज्योग्राफी और फिजिक्स में एक कॉपी बनानी है या हिस्ट्री और सिविक्स में? हिस्ट्री और सिविक्स फिर से पूछो. If writing was unknown, then how do we know about that period? Who can tell me? कौन बताएगा?
देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है। राइटिंग वाज अननोन। तब कैसे पता करेंगे वहाँ उस समय के बारे में? We learn about the age of artifacts through the carbon dating. अच्छा, we learn about the artifacts with the help of carbon dating. इसका सिंपल मतलब है कि हिस्ट्री जो है मॉडर्न पीपल लिखते हैं और वो एविडेंस इकट्ठा करते हैं। बात समझ में आया? Yes, sir. मॉडर्न पीपल अननोन रिटन टाइम के बारे में पता कर लेते हैं कि उस समय का लोगों का रहने का तरीका कैसे था, क्या खाते पीते थे और कैसे रहते थे। तो हम लोग वो धरती में कहीं कहीं दबे हुए जो है हम लोगों को क्ले पॉट मिल गया, कहीं पे कोई ऑर्नामेंट मिल गया, कहीं पे कोई स्टोन टूल मिल गया, कहीं केव पेंटिंग मिल गए, तो हम प्रूफ कलेक्ट करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो केव पेंटिंग करते थे। वो केव पेंटिंग करते थे। ठीक है, अब बताओ कितने लोगों को समझ में आया? लोगों को लिखने नहीं आता था, लेकिन वो ड्रॉ करके जो है केव पेंटिंग के साथ बता देते थे कि उनको कैसे जो है उनको नॉलेज जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को देना है। अब कितने लोग को समझ में आया? आवर इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द रिमेन्स ऑफ टूल्स, बोन्स, pottery and weapons that we have excavated. इसको लिख लेंगे। इसका मतलब प्रूफ। प्री हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग को आइडिया लग गया प्री हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, व्हाट अबाउट हिस्ट्री? It refers to that period when the invention of writing was already present. The written record, date, names and places of people may be written on. कोई बता सकते हो कहाँ लिखा हुआ मिलता था? Cave में। केव में तो ड्राइंग मिलता था केव में, लेकिन हिस्ट्री में लोग लिखने लगे, जब पढ़ने लगे तो वो ताल के पत्ते में लिखते थे। पाम लीफ, भोजपत्र, एक तरह के प्लांट होते हैं जिसके पत्ते को सुखा के वो लोग उस पत्ते में लिख लेते थे। ऑलराइट, और कुछ कुछ बिल्डिंग बना के भी वो लोग, हाँ वेरी गुड, कुछ बिल्डिंग बना के भी वो लोग जो है इंफॉर्मेशन उसमें जो है देते थे। कुछ ड्राइंग हो गया, कुछ इवेंट्स को वो लोग जो है वहाँ बनाए, कोई स्क्रिप्ट को वहाँ लिखे हैं। तो पुराने जमाने के स्क्रिप्ट भी अलग अलग है जो आज नहीं यूज होता है। जैसे पाली एक लैंग्वेज है, प्राकृत एक लैंग्वेज है, ठीक है। इस तरह से पुराने जमाने के लैंग्वेज में वो लिखते थे। अच्छा, कोई राजगीर गए हो, नालंदा गए हो? यस या नो? राजगीर में भी एक म्यूजियम है, नालंदा में भी म्यूजियम है, और हमें वहाँ के म्यूजियम में रखे हुए सामान से पता चल जाता है पुराने समय के लोगों के बारे में, वो क्या काम करते थे, कैसे रहते थे।
ये पिक्चर में आर्कियोलॉजिस्ट दिख रहे हैं। Yes, sir. उनके हाथ में क्या है? Brush. हाथ में एक ब्रश है और उससे वो उस जगह में पुराने जो कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो कि कोई मूर्ति है या कोई बोन है या कोई क्ले पॉट है, तो उसको पहले साफ करते हैं ब्रश से और बहुत केयरफुली वर्क करते हैं। वो देखो उसके हाथ में ब्रश है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो म्यूट करके रखोगे, किसी के यहाँ लग रहा है नॉइज हो रहा है। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पुराने ऑब्जेक्ट्स को जो है साफ करके वो निकालते हैं। कितने लोग नालंदा गए हो? आंसर दो। नालंदा कोई गए हो? बिहार में बहुत ज्यादा दूर नहीं है गया से। और नालंदा में जो है पूरी दबी हुई पूरे जो है ओल्ड रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड यूनिवर्सिटी एंड द एंटायर नालंदा स्ट्रक्चर इज देयर। सो आर्कियोलॉजिस्ट dig the earth surface and find out the proof, find out the evidence about the past, and then we scientifically write about that objects. आप प्री हिस्ट्री में क्या लिखे हैं? हिस्ट्री में लिखे हैं when art of, दिख रहा है आपको? यहाँ लिखे हैं bone, tool, bone, टूल मतलब हो गए हैं वो स्टोन टूल हो गए हैं, या कुछ भी मान लो कि एक्स है, नाइफ है, स्पीयर है। तो पुराने जमाने में अर्ली मैन के समय में भी वो पत्थरों से ही जो है औजार बना लेते थे, वेपन बना लेते थे और कुछ यूजफुल डेली आइटम्स भी बना लेते थे। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है कि कभी कभी लोग जो है पत्थर के भी थाली और कटोरी और ग्लास यूज करते हैं? ऐसा जानते हो क्या? पत्थर के थाली, कटोरी, ग्लास। 3 पार्टिसिपेंट्स नो अबाउट। पहले किया जाते थे कि पहले नहीं मनते थे। पुराने लोगों के घर में जो है थाली वगैरह पत्थर का होता था और बहुत जगह में मंदिर में भी तुम देखोगे कि पत्थर के ही मूर्ति के साथ साथ पत्थर के प्लेट रहते हैं जिसमें प्रसादी वगैरह चढ़ता है। आज ये चैप्टर हम जो है थोड़ी देर में 1 और 2 मिनट्स में हम कंप्लीट करके एंड कर देंगे, फिर स्कूल में जाएंगे तो हम लोग बाकी पढ़ लेंगे। जब से हिस्ट्री में हम लिखने लगे हैं और सारे प्रूफ हमें मिलने के लगा है, हिस्ट्री का रिटन रिकॉर्ड हमको मिल गया है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। वो एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। ठीक है। 3 parts of history is there: ancient period, medieval period and modern period. इसके बारे में भी बता देंगे बाद में कि एंशिएंट कब से कब तक है एंशिएंट पीरियड, फिर मिडिवल पीरियड कब से है और वो मॉडर्न पीरियड कब से है, और ये तीनों के क्या क्या फीचर्स है और इम्पोर्टेंस है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बताओ सर, कल ऑफलाइन है ना आपका क्लास? ऑफलाइन होगा, जैसे आज हुआ है वैसे ही होगा, और अगर नहीं होता है तो ऑनलाइन में भी हम लोग रीडिंग करेंगे और पढ़ेंगे और समझ लेंगे। ठीक है। यस सर। आज केवल इतना ही, एकदम सिंपल आज हिस्ट्री के बारे में बताए हैं। बुक को रीडिंग करोगे और फिर हम लोग जो है उसको कल और अच्छा से पढ़ेंगे। डू यू नो वाला बॉक्स कर लेना है। हाँ, होमवर्क यही वाला चैप्टर रीडिंग करने के लिए दिए हैं, चैप्टर 8 रीडिंग।
अच्छा से रीड करना, स्पेलिंग लर्न करना, हम स्पेलिंग भी पूछ देंगे. ओके सर. Bye bye to all of you. बाय बाय सर.